Welcome back in this session. Earlier, we have learned about the different paradigms. Here in this session, we have to learn about different components, how we can focus the study, specifically in qualitative research. आपके जो कोर्स आउटलाइन में डिफरेंट 3 से 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इसमें कवर होने जा रहे हैं अभी जो प्रेजेंटेशन अभी हम शुरू करने वाले हैं इसमें. So be focused, and if you do have any question, then as per usual routine, you are allowed to raise your hand and ask question and not wait for the last moment. इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मैं एक मैसेज आप सबको दूँ. अगर आप सब क्लास में आ जाएं तो फिर देता हूँ. पहले हम बात कर लेते हैं आगे जाने की. Introducing and focusing the study. In this this chapter will cover the problem statement be tested written to reflect one of the approaches to the qualitative research. हमने 5 approaches पढ़ी, तो उन 5 approaches के according किस तरह से पर्पस स्टेटमेंट बनाई जा सकती है. एक मॉक प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दोज अप्रोचेस हाउ we can be able to make some certain type of problem statement. How can the purpose statement can be written to convey the orientation of an approach in qualitative research? How can a central research question can be written so that it encodes the approach to qualitative research to be used? Or how can a central research question can be written to reflect the issues being explored in one of the qualitative approach? Therefore, let's discuss the research problem. The first few paragraphs of a study state the research problem. जब हम लिख रहे होते हैं ना इंट्रोडक्शन, बेसिकली जब हम लिखते हैं अपनी स्टडी का, तो वहाँ पे हम जो पहले 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ ऑलमोस्ट हम लिखते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को. द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेट्स द इशू लीडिंग टू अ नीड फॉर द स्टडी. एक्चुअली उसमें हाईलाइट करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्टडी. उसके वेरिएबल्स, उसके अंदर जो क्वेश्चन किए गए हैं, पूछा गया है, उसको वो करते हैं एक्सप्लेन. The need of study is framed within the existing literature and can be foreshadow the qualitative approach that will be used. The purpose of introduction is to present an overall rationale of the studying the problem. तो हमने जो अप्रोचेस 5 पढ़ी हैं, लिटरेचर व्यू हमें बताता है कि कौन सी अप्रोच इनमें से सिंगल वन फिट फॉर आवर स्टडी है. The need of the study. When writing about the problem, need of the study often relates to the qualitative approach. तो हमने 5 approaches पढ़ी: narrative, phenomenology, grounded theory, ethnography और case study. So very interestingly, I would like to share with you, when I assigned you a quiz to differentiate between all these 5 approaches, most of you were of the view just to define the certain approach and nothing more. When you have asked about the differentiation or to differentiate among all these, then you have to do something. Your personal input is needed towards highlighting the differences and commonalities. So according to my opinion,
you should put more practice and more emphasis to learn how to differentiate among the different terms and ideas. The purpose statement, general guideline in qualitative research हम देखते हैं कि generally उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. The elements of a purpose statement are to identify the qualitative approach to be used. It encodes the passage with words that indicate the action of research and the focus of approach to research. उबैद, आप बात सुन सकते हैं? हेलो, हुमा जावेद, साइमा शौकत, तो आपके अनम्यूटेड हैं पहले से? नो. जी उबैद, बात सुनिएगा. यस सर. हाँ, ये वाली जो अप्रोचेज हैं ये पहले तो नहीं डिस्कस की हुई हमने? सर आई थिंक ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. ये कि सही है, हमने पिछले लेक्चर में क्विज भी दिया था. तो मजेदार की बात है कि मैंने इंटेंशनली से स्टार्ट किया है, पिछली स्लाइड को भी और इसको भी, और मैंने पैरेलल साथ उसके रखा हुआ था कि मुझे कराना क्या है. आप चुपके से उसको भी सुनते रहे. मैंने तीसरी स्लाइड पे जाके रोका है कि मुझे बताएं कि कहीं हमने पढ़ा तो नहीं हुआ, और अभी भी यही काम किया. तो सर मेरे हाँ हाँ बोलें. म्यूट थे सर अभी तो. हैं? म्यूट थे अभी सर, बोल नहीं सकते थे. नहीं तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें. तो ये बड़ी अजीब बात है वैसे मेरे लिए ना, वेरी एस्टॉनिशिंग एटीट्यूड. मैंने ये इंटेंशनली दोनों पैरेलल रखी हुई हैं कि देखूं कि आप क्या करते हो. सुभान अल्लाह, ये काम ठीक नहीं है भाई. आप लोग कहाँ सोए होते हो हैं? इस तरह तो बात नहीं बनती ना. मतलब जिसका मतलब मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा के चला जाऊं तो कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए है? ओ बड़े बड़े प्यारे प्यारे बच्चों, बोलते नहीं. क्यों वैद? जी सर. अगर यहाँ मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाना शुरू करता हूँ तो आप तो समझोगे ठीक ही चल रहा है काम. सर हम ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं. नहीं, इतने भी ओबीडियंट नहीं होना चाहिए कि पता ही ना हो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना था. यार इस तरह ना करो मेरे साथ है? ये सर अच्छी बात है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. ओबीडियंट होना तो बड़ी अच्छी बात है. तो मैंने इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया कि 3-4 मिनट ही काफ़ी हैं. आइंदा से ये भी ख्याल रखना है, ये भी एक तरह का टेस्ट है आप लोगों का. अच्छा, इंशाल्लाह जरूर सर. अब मैं ये म्यूट कर रहा हूँ. तो अभी हम देखते हैं कि उन अप्रोचेस के जरिए जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे. तो हाउ वी प्रेजेंट डाटा एंड एनालाइज इट, लेट्स डिस्कस विद यू. यहाँ पे मैं आपसे सबसे एक कॉमन बात करना चाहता हूँ. सब लोग सुन रहे हैं? जी सर. यस सर. हाँ, बड़ा फोकस करके आपने सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुननी है. मुझे पता है कि आप में से किसी ने भी ये पहले नहीं पढ़ा हुआ. नंबर 1, मुझे ये भी पता है कि इससे पहले कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा आपने. तो दोनों तरह से प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने पहले 3 हफ्ते 3 वीक्स बल्कि 4 वीक्स तक आई वॉज मच लीनियंट. मैं आपकी तमाम क्यूरीज को एंटरटेन करता रहा, सपोर्ट करता रहा. वहाँ अपलोडेड असाइनमेंट अगर नहीं हुई, गलत हो गई है, चेंज को मान लिया, बुलवा लिया.
और इंतज़ामिया की तरफ से भी एडवाइस थी कि ज़रा इन्हें पहले 3 हफ्ते ना अकोमोडेट करें, मोटिवेट करें। तो मुझे भी ये थी इंटरेस्ट कि आप लोगों ने अगर एडमिशन लिया है तो कहीं आप इस खौफ से ना डर के भाग जाएं कि चीज़ें मुश्किल है। क्लासरूम में सामने आमने बैठ के सुनना और पढ़ना कुछ और बात होती है, यहाँ कुछ और होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जैजुरेटेड मार्क्स भी देता रहा, यानी अगर 3 बनते थे तो 4 दे दिए, 2 बनते थे तो 3 दे दिए कि प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात आई है कि आप लोग बजाय पढ़ने के कोई आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके तो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। वो आप ज़रूर करें, लेकिन क्लास के बाद करें। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप आपस में खेल लें, जो भी करना है करें। क्लास के दौरान सिर्फ क्लास को पढ़ें, अपना नुकसान मत करें। तो मुझे ये भी पता है, ये दाढ़ी मेरी सफ़ेद धूप में फिर के नहीं हुई। टीचर के बारे में भी कमेंट्स होते हैं, लोग डिफरेंट तरह की बात भी कर रहे होते हैं। नो प्रॉब्लम, करना है तो करते रहें, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैंने कुछ लोगों से, जिस तरह रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग करते हैं कि 5 में से 1 और 10 में से 2, तो 50 में से 6 या 7 लोगों को खुद कॉल करके पूछा था कि आप ज़रा बताइए कि मैं जानना चाह रहा था पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और वो लोग मैंने सेलेक्ट किए जो मुझे अंदाज़ा था कि इनका अप टू मार्क चीज़ें सारी नहीं हैं, पहले नहीं थी, फिर कोई उनके ठीक मार्क्स आए तो फिर मैंने वो उन्हें चेक किया। ठीक, तो ये सारा कुछ फॉर योर बेटरमेंट है। आई एम योर मेंटोर एंड आई थिंक सो कि हमारा जो मजहबी एक इत्काद है वो ये है कि हमारे असातिज़ा हमारे लिए मशअल राह होते हैं, हमारे असातिज़ा हमारे रूहानी बाप होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके उन उस पर पूरा उतरा जाए। लेकिन इवन देन अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो मसले का हल, मेरे साथ मसला है तो वो मैंने हल करना है। आपस में आप जो मर्जी खिचड़ी पकाते रहें, वो इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो टाइमली जब मेरे से आप बात करेंगे तो शायद उसका कोई मेरे पास सोल्यूशन हो। आपस में आप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट शेयर करते रहें, बातें करते रहें, लतीफ़े खेलते रहें, जिस तरह की मर्जी गुफ्तगू करते रहें, उसका मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, और मैं हर तरह से वॉच कर रहा हूँ। मुझे ऑल ऑफ द जो एक्टिविटीज़ हैं क्लास की वो मेरे नॉलेज में है। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर क्लास पढ़ाए और वो उसे पता ना हो कौन क्या सोच रहा है, कैसे हो रहा है। आमने सामने तो 100% होता है, लेकिन ऑनलाइन भी आपकी राइटिंग से और डिफरेंट तरह के जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके रिस्पांस से पता चल जाता है। क्लास पार्टिसिपेशन के मैं हमेशा नंबर रखता होता हूँ और मैंने वो मार्क्स देने हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको मार्क्स मैंने नहीं देने, ये अभी से ज़हन में रख लें। फाइनल एग्ज़ाम तक 5 से 10 तक नंबर क्लास पार्टिसिपेशन के हैं। जो लोग साइलेंट बने रहते हैं, माइक ऑन करके और काम करते रहते हैं, वो भूल जाएं ये मार्क्स। जो पार्टिसिपेट करेगा उसको मिलेंगे। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने। आज का ये मैंने माफ़ किया दोनों लेक्चर्स का। none of you was thinking about like on these lines on which I played. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कोई मसला है, इशू है, मेरे मुतल्लिक है, मेरे से बात करें। मैं कर सकता हुआ तो मस्ट उसको करूँगा, इमीडिएटली करूँगा। और ईमेल लिखना कभी मुझे मौका मिले आमने सामने या कहीं ग्रुप ईमेल हो सबका, तो मैं आपको एक ईमेल लिख के दिखाऊं कि यूं ईमेल लिखते हैं। यकीन जाने आप ऐसे ईमेल लिखते हैं जैसे पैदल चलता हुआ बंदा हाथ में रोड़ा छुपाए जा रहा हो और किसी को मार के दीवार के साइड पे छुप जाए, पता ही ना चले किसने रोड़ा मारा है। खुदा का नाम ना वहाँ सब्जेक्ट लिखते हो कि क्या काम क्या कहना है, ना नीचे स्टार्ट करते हो कि किसको बोल रहे हो, ना कोई अपना आता पता बताते हो कि हम कौन है। अटैचमेंट की और फेंक दी, ये लें जी टीचर जाने और अल्लाह उसका काम जाने। तो बराए मेहरबानी ये जो इब्तदाई क्लासें होती हैं प्राइमरी की, उसमें ख़त लिखना सिखाया जाता है। तो ये वही ख़त है जहाँ बड़े अदब एहतराम से आप शुरू करते थे और फिर अपना मसला बताते थे और फिर एंड पे अपना नाम पता लिखते थे कि हम कौन हैं। तो आपकी जितनी ईमेल्स आती हैं, सुभान अल्लाह,
मजाल है, मैं फिर गुस्से से लिखता भी हूँ कि पहले ईमेल लिखना सीख लें, तो प्लीज़ सीख लें, इसमें आपका फ़ायदा है। और फिर रोमन इंग्लिश लिखते हैं माशाल्लाह से, एमफिल इंग्लिश के बच्चे जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंग्लिश पे जा रहे हैं, मास्टरी हासिल कर रहे हैं, वो रोमन इंग्लिश में ईमेल लिखते हैं। खुदा का कहर है ये। क्या इंग्लिश नहीं आती या दिल नहीं चाहता? तो इस तरह ना करें अपने साथ। मतलब मैंने तो ये सेमेस्टर आधा तो गुजर रहा है, आज 12वीं क्लास है, बात ख़त्म हो जानी है, आधा सेमेस्टर और रह गया। लेकिन आपको अपनी लाइफ में चीज़ें मैनेज करने के लिए खुद से सोचना चाहिए। चलें, ये तकरीर लंबी हो गई है, काम की तरफ आते हैं। तो आपका कोई कमेंट है तो आप कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज़ बोलें बोलें बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आवाज नहीं आ रही सर? मुझे आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम भी कह रहे थे और आज भी कह रहे थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर किस किस्म का कंटेंट मसलन शेयर हुआ है? हमारे नॉलेज में मोस्टली, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, शायद यहाँ पे किसी के हो तो वो आप बता सकते हैं काइंडली? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। एक तो लोगों ने मेरे एंड पे एक ये हुआ कि मैंने शुरू में आपकी असाइनमेंट्स जो थी मार्क की थी सब इकट्ठी, जी यानी सर। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मैंने मार्क किया, तो किसी को नहीं पता चला कि इसके कितने मार्क्स हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से मैंने ये किया कि जैसे जैसे आप अपलोड कर रहे हो साथ साथ मैं जी सर। उसको मार्क कर रहा था। अब क्लास के जी अंदर सर। कुछ ऐसे उलमा हजरात हैं या मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, वो जिसके कोई मार्क्स अच्छे आते हैं वो सबसे शेयर करते हैं कि जी मेरे इतने आ गए हैं। बाकी उनसे मांगना शुरू कर देते हैं कि हमें दे दें हमें दे दें। 6 से 8 लोगों की डिटो कॉपी असाइनमेंट है, सेम वही की वही, ठीक है। और ये इसी तरह ही जी हासिल सर। की गई है, बैगिंग कर करके कि जी मुझे दे दें हमें दे दें। अच्छा, आपस में एक तो ये बैगिंग की, दूसरा जो कंटेंट ये शेयर हुआ कि लो जी सर से मैंने कहा था कि मेरे नंबर बढ़ा दें, तो सर ने जो तो बढ़ा दिए, सर तो चेक ही नहीं करते। फिटे मुंह है ऐसी सोच का कि जब आप ईमेल पे या मैसेज पे या फ़ोन पे मेरे से बैगिंग करें कि सर एक मौका दे दें, सर एक दफ़ा हमें ज़रूर कर दें, हम तो बड़े मुश्किल है, फ़लाँ है, तो फिर बाद में आप लोगों से यूँ शेयर करें। जो भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये ग्रुप है लोगों का, और ग्रुप का मतलब होता है 2 से ज़्यादा लोग हैं। अगर जी सर। नहीं भी समझते तो मेरी बला से मुझे क्या मसला है, करते रहें, अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अब मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैंने पिछली दफ़ा भी कर दी थी, अब फिर कर दी फाइनली, अब मैंने नहीं करनी। ठीक हो गया? जी थैंक यू सर। हाँ। तो इन टर्म्स ऑफ डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज, हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करना है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम देंगे। 4, व्हाट आर द कॉमन डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च? हाउ might the overall data analysis process be conceptualized in qualitative research? What are specific data analysis procedures used within each approach to inquiry, and how do they differ? What are the procedures available in qualitative computer analysis programs, and how would these procedures differ by approaches in qualitative research inquiry? तो देखो, वो जो अप्रोचेस की हमने बात की थी, पैराडाइम की बात की थी, 5 अप्रोचेस हैं, 3 पैराडाइम्स हैं। ये आगे टोन सेट करती हैं आपकी रिसर्च की, कि जो आपने डाटा इकट्ठा किया उसकी नेचर क्या है, और उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है, उसको कंसेप्टलाइज करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, और फिर किस तरह के जो एनालिसिस के मेथड्स अवेलेबल हैं, किस किस डाटा नेचर पे कौन सा अप्लाई होगा। लेट्स सी दिस 3 एनालिसिस स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे। एक है एनालिटिकल स्ट्रेटजी, ठीक। दूसरी है, आप देखें अकॉर्डिंग टू
ये तीन आपके पास हैं डिफरेंट रिसर्चर्स, ठीक है। मेडिसन है, माइल्स है, वॉकट है। तो इन तीनों ने बताई हैं स्ट्रेटजीज एनालिसिस करने की। नंबर 1, स्केचिंग आइडियाज। किस तरह स्केच करने, आइडियाज स्केच कैसे करने हैं। इसमें मेडिसन तो खामोश है, लेकिन माइल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि राइट मार्जिन नोट्स इन फील्ड नोट्स। एक जनरल नोटिंग आप कर रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, चीज़ एक आपने देखी है, डॉक्यूमेंट है, तो उसके मार्जिन नोट्स लिखें, उसके कीवर्ड्स हाईलाइट कर लें। वर्कआउट ये कहता है कि हाईलाइट सर्टन इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन आपको मिली है उसके अंदर जो सर्टन हाईलाइट्स हैं उनको अलग कर लें। टेकिंग नोट्स अगेन डाटा कलेक्शन की एक फॉर्म है। इसमें वाइल्स ने ही हमें ये बताया कि राइट रिफ्लेक्टिव पैसेजेस इन नोट्स, समराइज फील्ड नोट्स। वो जो आपने फील्ड नोट लिए हैं उनको समराइज करना है, तो कैसे करना है, ड्राफ्ट अ समरी शीट ऑन फील्ड नोट्स। गेटिंग फीडबैक ऑन आइडियाज, साइलेंट वर्किंग विद वर्ड्स, मेक मेटाफर्स। आइडेंटिफाई कोड्स, कोडिंग की हम बात कर चुके हैं। कोड्स होते हैं, कोड्स की बुनियाद पर हम फिर थीम्स डेवलप करते हैं, थीम्स को नैरो डाउन करते हैं। और इसमें वो कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्टिंग कोडिंग और कंक्रीट कोडिंग। एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट, एग्जैक्ट वो कोड आप नंबर 1 2 3 देंगे या ख्याली देंगे जिनको बाद में आप डिलीट कर लेंगे। जिस तरह आपका नहीं वो होता एग्जामिनेशन के अंदर शीट पे रोल नंबर होता है फिक्टिशियस, तो दैट इज़ अ कंक्रीट नंबर। तो लाइकवाइज नंबर जो देंगे आप कोड देंगे। लेकिन एक और कोड होता है जो साइंस होते हैं, वो एवरी पर्सन कैन नॉट रीड। राइट कोड मेमोस उनका रिकॉर्ड रखना है। रिड्यूस कोड्स इनटू थीम्स, आइडेंटिफाई salient themes or patterns, note patterns and themes and identify pattern regularities। बेसिकली ये जो लास्ट स्टेप है ये इन है इन ऑल टाइप्स ऑफ 3 एनालिसिस स्ट्रेटजीज के अंदर। फर्दर मोर, करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोड्स। फ्रीक्वेंसी होती है कितनी दफ़ा कोई चीज़ जो है वो अकर हुई है, उसको कोड कर लेते हैं। 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा। रिलेटिंग कैटेगरीज, इमरान इसमें कहते हैं कि जी फैक्टरिंग, फैक्टर बना लें, नोटिंग रिलेशन बना लें, वेरिएबल्स की आपस के अंदर क्या रिलेशन डेवलप हो रही है। बिल्डिंग अ लॉजिकल चेन ऑफ एविडेंस। फिर है रिलेट टू एनालिटिक फ्रेमवर्क इन लिटरेचर। उसको कहता है कंटेक्स्ट में लिखें, कंटेक्चुअलाइज करें इन द फ्रेमवर्क लिटरेचर। क्रिएट अ पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए उसका। फॉर सीन्स ऑडियंस एंड रीडर्स, उन्हें पढ़ के पता चले, क्रक्स जिसे हम बोलते हैं, कंक्लूजन कह लें। डिस्प्ले द डाटा, क्रिएट अ ग्राफ और पिक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंपैरिजंस। डिस्प्ले फाइंडिंग्स इन टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, फिगर्स, कंपेयर केसेस, कंपेयर विद अ स्टैंडर्ड। तो ये स्ट्रेटजीज थी डाटा एनालिसिस की। द डाटा एनालिसिस स्पाइरल, आप अपने दाएं हाथ के को अगर मुट्ठी बंद करें और थंब को खड़ा रखें और पहली उंगली से यूं टर्न लेते लेते ऊपर जाएं तो आप थंब से बाहर निकल रहे हैं, तो ये एक स्प्रिंग बनता है। अब वो जो पहली नीचे वाली उंगली थी वो बाहर थी, वो देखो डाटा कलेक्शन, टेक्स्ट, इमेजेस, तो ये एंटर हो रही हैं इस स्प्रिंग के अंदर, स्पाइरल के अंदर। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड डाटा था एंटर हो रहा है और आगे वो प्रोसेस हो रहा है जितना उसके रिंग्स बने हुए हैं। तो प्रोसेसिंग के बाद आप देख रहे हो बाहर एरो हेड में अकाउंट आ रहा है, मीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो प्रोसेसिंग जो है वो आप देखें कि 8 हैं। द इमीडिएट प्रोसेस जो होगा वो फाइल यूनिट्स ऑर्गेनाइज, यानी जो डाटा इकट्ठा हुआ है उनको फाइल्स में
लेके आते हैं फाइल जो स्प्रेडशीट की फाइल्स होंगी या SPSS की फाइल्स होंगी या टेबल्स होंगे, उसमें उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग और मैनेज में फ़र्क है। ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आपने एक ही तरह का डाटा एक साथ लिखना है, लेकिन डाटा मैनेजिंग का मतलब ये है कि वो आपकी शीट पे प्रॉपर नज़र आए और उस पर जब हम कोई एक्सेस करना चाहें तो वो पेज सेम रहे, पेज के अंदर डिफरेंस ना बने। फिर है रिफ्लेक्टिंग राइटिंग नोट्स अक्रॉस द क्वेश्चंस। अब जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस थे उसके अकॉर्डिंग जो आपने नोट्स लिए थे वो उनके अंदर चेन होनी चाहिए, ब्रिज अप हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। फिर रीडिंग द मेमोइंग, वो जो आपने मीमोस बनाए थे उसको रीड करें, को मैच कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट कैटेगरीज एंड कंपैरिजंस। फिर है डिस्क्राइबिंग क्लासिफाइंग इंटरप्रेटिंग, और जब इंटरप्रेट हो जाए तो उसके मैट्रिक्स होंगे, ट्रीज होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे, कोई डायग्राम बनेगी और उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि वो देखे जा सके, दिस इज द अकाउंट। Very interesting and systematic approaches here towards the data analysis. This is known as the data analysis spiral. ठीक है। Now it's the data management. Organize data into files, folders or computer files. Make backup of the copies of the data. कभी भी एक कॉपी में ना रखें, एक फाइल में ना रखें, अलग अलग फोल्डर बनाएं और मल्टीपल फोल्डर बनाएं। एक फोल्डर आप अपनी लैपटॉप की ड्राइव में रखें और एक कहीं गूगल ड्राइव पे रख दें, किसी आउटसोर्स जो डिवाइस है उसमें रख दें। अपने आप को आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि मशीन है, मशीन किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है, तो उसके अंदर वाला डाटा फिर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो आपने ईमेल किया होगा, गूगल ड्राइव में किया रखा होगा, ये वो कहीं भी आप खोल सकते हैं। कंस्ट्रक्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान सो दैट द डाटा इज़ ईजी टू लोकेट। अच्छा, आप संभालते संभालते इस कदर ना उसको तय करता है, संभालने के बाद में खुद ही निकालना मुश्किल हो जाए, पता होगा कि इस फाइल में कहाँ डाटा रखा हुआ है। कन्वर्ट फाइल्स इनटू टेक्स्ट यूनिट्स, वर्ड, सेंटेंस, स्टोरी। डेफिनेटली आप इसको इस बाद में हमें ये डाटा रखना होगा। देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन फैसिलिटेट डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। तो डिफरेंट टाइप्स की एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, उसको रखने के लिए डाटा को कंप्यूटर के अंदर, वो आपको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने स्टोरेज बताया, ईमेल बताई, गूगल ड्राइव बताई, हार्ड ड्राइव पे रख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे रख सकते हैं आप। तो दिस इज अबाउट द मैनेजिंग ऑफ डाटा। नाउ रीडिंग एंड मेमोइंग। रीड एंटायर ट्रांसक्रिप्ट सेवरल टाइम्स टू गेट एन ओवरऑल मीनिंग। फर्स्ट अटैम्प्ट में पहली दफ़ा देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, तो हमें कई दफ़ा पढ़ के उसको अंदाजा करना पड़ता है उसके थीम निकालने के लिए। Make notes in margins of transcripts. Field notes are photographs as you read to note key phrases, ideas, concepts. तो ये रिटर्न जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। These notes can become part of databases for analysis. फाइनली ये डेटाबेस एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होंगे। Describing, clarifying and interpreting. This is again one of the most important component. 10 मिनट के बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा सेशन, तो आई थिंक सो फिर अगले सेशन में इसी आईडी से हम शायद एंटर हो सके, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो develop codes are categories that describe what is being talked about are seen in a visual image, that is photograph. Develop only about 25 to 50 codes, lean coding इसे बोलते हैं। 50 कोड से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आपने बाद में इसको थीम में डेवलप करना है। तो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो थीम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं 7 से लेकर 13 तक के। कोड्स कैन बी काउंटेड टू सी हाउ फ्रीक्वेंटली दे अपीयर इन द डाटा। तो ये जब कोड आपने एक दफ़ा एक फ्रेज को कर लिया तो दोबारा वो फ्रेज आएगी तो कोड करेंगे तो वो पहले वाला कोड ही उसको लगेगा। तो यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी हमें सामने आती जाएगी, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड।
Pre-existing or prior codes can sometimes come from the literature. Codes can originate from the researcher or can be in vivo codes, which are the exact words of the participants. In vivo एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जिस तरह पेरोरी कोड्स है ऊपर लिखा हुआ, वो भी कोडिंग के लिए काम आता है. SPSS स्पेशल सोशल साइंस स्पेशल पैकेज है. इसी तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर में जो यूज होते हैं इस पर्पज के लिए. Describing, clarifying, and interpreting carried out from the previous slide, we see here code segments to look for. Codes that represent information that researchers expect to find before the study. Codes that represent surprising information the researchers did not expect to find. Codes that represent information in the conceptuality interesting or unusual टू रिसर्चर. 3 तरह के कोड हैं ये बताए हुए, इंफॉर्मेशन के, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन के, और वो इंफॉर्मेशन जो कंसेप्चुअल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोड अलग अलग होने चाहिए. यूज कोड्स टू डेवलप लार्जर थीम. अब आगे बात उस पर कहता है कि बड़े थीम्स इस पे बनेंगे तो ब्रॉडन जनरल आइडियाज पे. इसके हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, वो गार्ड वाली यूनिवर्सिटी जो थी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सोचें तो ये वो उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं. लिमिट थीम्स अप टू 5 to 7, सॉरी आई अर्लियर सेड 7 to 13, दैट वाज रॉन्ग. 5 to 7 सब थीम्स में आप उसको लेके आए तो ये बेहतरीन डाटा होगा ताकि आपकी बातें क्लैरिटी के साथ सामने आ सकें. यूजिंग अ पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव. पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है वो आपका है क्वालिटेटिव. तो थीम में भी formed during data analysis to disseminate, examine, attend descriptions, focus on elements, interpret to the metaphor, analyze the double and trends, and separate group specifics. तो ये पर्पजेज हैं जहाँ पे इसमें 6 मेजर थीम्स ये वाले बनेंगे. इसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉरी पहला है डिसमेंटल और डायकोटोमी. तो एक जैसे जो हो वो उसको अलग अलग करेंगे, उस डायकोटोमी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए. दीज आर द फॉल 7 टाइप्स ऑफ थीम्स जो पीछे हमने बात की थी कि 5 से 7 होने चाहिए. ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंटरप्रेटिव है, हमने उसको इंटरप्रेट करना है, लिखना है. इंटरप्रेशन ऑफ द डाटा इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस ऑफ द डाटा. किस तरह की सेंस थी उसमें जो रिसर्चर हांच करना चाहता है वो बात सामने आए, और सोशल साइंसेस कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बेस करती हो. पर्सनल व्यूज और कंट्रास्टेड विद द सोशल साइंस कंस्ट्रक्ट्स के साथ इसका कहीं उसको वो वेरीफाई कर रही है और कहीं उसको वो कंस्ट्रक्ट बिल्कुल कहीं उसके अगेंस्ट है या उसको वेट नहीं कर रही. The process of interpretation involves forming larger meaning of what is happening in the situation or sites. तो एक्चुअली जो इंटरप्रिटेशन का मकसद होता है वो ये देखना होता है कि सिचुएशन क्रिएट की जाती है. जिस तरह मुकर्रर अपने तकरीर के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं को सामने ला के एक कहानी करता है, एक सिचुएशन करता है, और हम फील कर रहे होते हैं वहाँ उस जगह पे जहाँ की वो बात हो रही है. शायर अपनी पोट्री और शेरों के जरिए, इकबाल की शायरी बड़ी पड़ी है इन बातों से कि दुआ मांगता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह के हुजूर झुकता है, तो वो सर्ब सुजूद वाली जो नज़म है उसको हम पढ़ें तो हम महसूस करते हैं वहाँ पे जो मसले करतबा पे उसने लिखी, उसको अगर आप पढ़ें तो हम महसूस करते हैं कि हम वहाँ बैठे हैं. सिमिलरली द क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है उसने अपना जो राइट ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये एक पिक्चर डेवलप करनी है कि पढ़ने वाला जो है रीडर जो है उसकी रीडरशिप फील करे उस सिचुएशन को. Postmodern and interpretive researchers view these interpretations as tentative inclusion and questioning. So that was all about describing, clarifying, and interpreting the analyzed data in qualitative research. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है, वो जो हम बात कर रहे थे इसकी
जो एनालाइजिंग स्पाइरल हमने पढ़ा पीछे, स्प्रिंग, उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स थे उनको अलग अलग यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेकंड लास्ट है, रिप्रेजेंटिंग एंड विजुअलाइजिंग। तो रिसर्चर्स पैकेज द फाइंडिंग्स एज टेक्स्ट, टेबल एंड फिगर। तो कोई उसके टेबल बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं, हायरार्किकल डायग्राम बना सकते हैं, ट्री डायग्राम बना सकते हैं, एक्सियल कोडिंग डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह, या हाइपोथेसिस को एरोहेड देके उनकी पोजीशंस को ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज से मुतालिक उसको कैटेगराइज करके स्पेसिफाई किया जा सकता है। दीज ऑल द थिंग्स इलस्ट्रेशंस हैं उसकी, कि उस रिजल्ट को कैसे उसने रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, कि सबको पता चल सके व्हाट आर द फाइंडिंग्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन में इसको हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस को। अभी तक तो हमने वो जो स्पाइरल एनालिसिस कंपोनेंट्स थे उनको डिटेल में देखा है। अभी तक का किसी का क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योर माइक। इट्स योर टर्न, यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नमाज की ब्रेक इसी में इंक्लूड है जो 10 मिनट्स के? चले कर लें इसमें, ठीक है, कर लें। राइट सर, थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर नेक्स्ट सेशन की आईडी और पासवर्ड सेम होगा? आई थिंक सो यही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता तो मैं सेंड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है ये चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच जी, एनीबॉडी एल्स? हेलो, ठीक, किसी और ने क्वेश्चन करने हैं? सुन के थक गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फायजा। सर एक्चुअली मुझे पूछना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड टर्म पेपर? ओके, टर्म पेपर इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो वो आपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया होता है रिसर्च पेपर का, उसको टर्म पेपर कहते हैं। जब ये मटेरियलाइज हो जाए, फाइनली रिव्यू होके ओके हो जाए, देन इट बिकम्स अ रिसर्च पेपर। As far as methodology of research conduction is concerned, it is the name of same thing. दोनों टर्म्स एक ही बात को बताती हैं। ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं क्या? Yes, there must be 5 components on the basis of which any of the abstract is written. First of all, there must be research objective. Number 2, जी। there must be research design, methodology, population, ये उसमें आ जाएंगे, और इंस्ट्रूमेंट, और analysis and the research of your results of your research, और finally recommendations। ये 5 चीजें इसमें मस्ट आनी चाहिए, इनके बगैर एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है।